Welcome students of standard 8. As usual, I came online to teach you today. First time for standard 8, I am going to explain literature. First chapter of literature, the title After a Shadow. Shadow means you can say that image of something, that is called shadow. The theme of this story you try to understand first, again you will interest. Number of people, they run away after shadow. Shadow, what kind of shadow people run away? Such as money, fame, name, etc. For pursuit of name, fame, glamour, they miss number of things such as happiness, smile, etc. So the theme of chapter is we should not run away of name, fame, glamour. We should enjoy every moment, every minute. This is the real meaning of life. So in gaining name, fame, glamour, we live, smile, happiness. We live how to enjoy each moment, each minute. This chapter teaches us how to enjoy, how to be happy every moment, how to enjoy every moment. As you know that live for today. We have to live for today. And learn from yesterday. Hope for tomorrow. That is the real definition of for life. Next, come to the point. I read again, explain. RT called Mrs. Mayflower from the window one bright June morning. RT, darling, what is the child after? Just look at him, Mr. Mayflower. Mrs. Mayflower is husband of Mr. Mayflower. In this story, Mayflower is narrator. So Mrs. Mayflower said to Mr. Mayflower, look, Mr. Mayflower, what is after child? Child के पीछे क्या देखिए? तो बच्चा जब धूप में निकलता है देखिए तो उसका इमेज बनता है. इवनिंग में बड़ा इमेज बनेगा, मॉर्निंग में और बड़ा बनेगा, दोपहर में छोटा बनता है. I leaned from the window in pleasant excitement to see what the new adventure my son had got into. Wanting to enjoy the bright day of summer, RT had escaped from his nanny and ran off in the sunshine. RT, he is son of Mr. Mayflower and Mrs. Mayflower. So he escaped from the hand of nanny. Nanny तुम्हें पता है एक महिला होती है जो बच्चे को पालन पोषण करती है, ठीक है. एंड ही वेंट इनटू सनशाइन, धूप में चला गया और जब आगे बढ़ा तो उसके पीछे उसका शैडो था. आर्टी डार्लिंग कॉल्ड आउट हिज मदर बट इट वेंट आर्टी डार्लिंग called out his mother but it went unheard by the excited child whose world was made of the delights and the world. उसकी माँ बुलाई आर्टी डार्लिंग. डार्लिंग मीन्स जो प्रिय चीज़ है उससे आप डार्लिंग कहेंगे, दैट इज़ वेरी क्लोज टू योर हार्ट. लेकिन बच्चा सुना नहीं और फिर एक्साइटमेंट में आगे बढ़ गया, देखा आगे इमेज उसका बन रहा है. रन आफ्टर हिम, अपनी मस्ती के लिए आगे बढ़ गया. मिस्टर Mayflower said my wife with a touch of worry in her voice. He might fall and hurt himself. Mother said to father, just go and take him, otherwise he will fall down, he will get hurt. जाइए उसको लेकर आई, नहीं तो उसे वो गिर जाएगा, उसे चोट लग जाएगा. किसको? आर्टी को. आर्टी कौन है? मिस्टर Mayflower और मिसेस Mayflower का बेटा है जो घर से बाहर निकल गया है धूप में और इमेज को देखता है, उसको पकड़ने की कोशिश करता है. I didn't need to be told twice. Little children can get into trouble when you least expect it. फादर कहते हैं छोटे बच्चे गिरते ही हैं, ठीक है, बिना गिरे उसको चलना आता नहीं. डोंट वरी. व्हाट इज इट डार्लिंग, व्हाट आर यू रनिंग आफ्टर? आई सेड एज आई आस्क्ड हिम टू स्लो डाउन.
फादर बाहर आते हैं और कहते हैं बेटा तुम क्यों बाहर भाग रहे हो, क्या देखा तुमने जो तेजी से बाहर आया एक्साइटेड होकर के। He struggled a moment and then stood still, stopping forward for something on the ground. He did that twice and each time looked at me with a puzzled face. वो क्या देखा, वो बच्चा नीचे झुका, he bent down, he tried to touch the image को पकड़ने की कोशिश किया, and again he puzzled his face and looked his father. फिर देखा कि पकड़ाता क्यों नहीं, इमेज कैसे पकड़ाएगा उसे पकड़ने की कोशिश किया। ओ पापा सी ही फेल टू कैच द ऑब्जेक्ट ऑफ हिज परसूट, जिसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, वो फेल हो रहा था पकड़ने, क्योंकि इमेज तो पकड़ाएगा नहीं। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। वाई आरती आई एक्सक्लेम कैचिंग हिम अप इन माई आर्म्स, इट्स ओनली योर शैडो फुलिश चाइल्ड, एंड आई रैन बैक टू मिसेज मे फ्लावर विद माई बेबी बॉय हेल्ड क्लोज अगेंस्ट माई हार्ट। फादर सेड टू बॉय, ये तुम्हारा शेडो, इसके पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, ये तुमसे पकड़ाएगा नहीं। और शेडो आगे ही रहता है, फिर उसको पकड़ के अपनी वाइफ के पास लाते हैं मिस्टर मे फ्लावर। आफ्टर शेडो सेड आई थिंक शेड आई शेकिंग माई हार्ट हेड अ लिटल सुवेडली एज आई लेफ्ट आर्टी टू हिज मदर, सो लाइफ बिगिन्स एंड सो इट एंड्स। पूर आर्टी, और आर्टी को उसकी माँ को गोद में दे देते हैं, और मिस्टर मे फ्लावर कहते हैं कि शेडो के बाद ही ज़िंदगी स्टार्ट होती है, और इसी को पकड़ने में ज़िंदगी एंड भी हो जाती है। मिस्टर मे फ्लावर लाफ्ड आउट राइट मेरली, मिस्टर मे फ्लावर इनकी बातों को सुन करके हंसते भी हैं कि इमेज को पकड़ने में ज़िंदगी, इमेज के पीछे ज़िंदगी स्टार्ट भी होती है, उसे पकड़ने में ख़त्म भी हो जाती है। सो लाइफ बिगिन्स सो इट एंड्स, आई रिपीटेड टू माई सेल्फ एज आई लेफ्ट द हाउस एंड वॉक टुवर्ड्स माई शॉप। फिर वो बेटे को माँ गोद में दे करके अपनी ड्यूटी पे चले जाते हैं, ठीक है, अपनी शॉप, क्योंकि ये शॉप चलाते हैं। वी आर ऑलवेज इन द परसूट ऑफ शेडोज, वी आर ऑलवेज सो ईगर फॉर द फ्यूचर एंड व्हाट माइट हैपन दैट वी लूज द गिफ्ट्स ऑफ द प्रेजेंट एंड रन टुवर्ड्स द फ्यूचर दैट इज़ लाइक अ घोस्ट एंड द अनसर्टेन। कहते हैं फ्यूचर में क्या होगा उसके पीछे हम लोग भागते रहते हैं, ठीक है, और प्रेजेंट में क्या होता है उसको हम इंजॉय नहीं करते हैं। व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, इट इज़ लाइक गोस्ट, वी शुड नॉट रन अवे ऑफ फ्यूचर, वी शुड एंजॉय प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू मिस्टर मे फ्लावर। मे फ्लावर ये कहते हैं कि हमें प्रेजेंट को एंजॉय करना चाहिए, फ्यूचर में क्या होगा डोंट वरी, ठीक है, व्हाट विल हैपन आई विल सी इट, बट यू एंजॉय प्रेजेंट, एंजॉय टुडे, डोंट रन अवे ऑफ फ्यूचर। द शेडो लेसन वाज फॉरगेटन बाय द टाइम, ठीक है, फिर वो दुकान पहुंच जाते हैं और शेडो लेसन भूल जाते हैं। आई रीच्ड माई शॉप एंड बिकेम बिजी इन माई वर्क ऑफ मेकिंग लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट वर इन द स्टोर एंड व्हाट हैड टू बी ब्राउट और द मनी ओन टू मी। क्या क्या सामान आएगा, क्या क्या बिका, क्या क्या लिस्ट बनाना है। मिस्टर मे फ्लावर गॉट इंगेज्ड, गॉट बिजी इन द वर्किंग ऑफ शॉप, लाइक मेकिंग लिस्ट ऑफ थिंग्स, ठीक है, काउंटिंग ऑफ मनी, एवरीथिंग। ही लॉस्ट द lesson of image. I buried myself among the letters, invoices, accounts, samples and the calculation of profit. प्रॉफिट लॉस का कैलकुलेशन देख लेंगे, क्या सामान है क्या नहीं है, अकाउंट क्या, सब चीज़ों। इट मीन्स ही became busy in the work of shop. He forgot the story of image. My goal was to gain as much wealth in future as possible and I worked towards that goal. और कहते हैं कि हम लोग का यही गोल होता है कि जितना पैसा कमा लें, ठीक है, जितना पैसा अर्जित कर सकें, ठीक है, और इसी गोल के पीछे भागते रहते हैं, ठीक है। ये सोचते नहीं कि जो ज़्यादा कमाता है, जो ज़्यादा धन को कमाने के लिए अपनी ज़िंदगी को लगाता है, वो दूसरों के लिए कमाता है, अपने लिए तो उतना ही चाहिए, खाने के लिए और सोने के लिए। मिस्टर मे फ्लावर सेड वन ऑफ द क्लर्क्स डिस्टर्बिंग मी फ्रॉम माई वर्क, वी हैव अ न्यू मैन इन फ्रॉम द वेस्ट and Mr. B from Elton. Mr. Mayflower said one of the clerk, एक क्लर्क उनको बुलाता है, Mr. Mayflower disturbing me from my work, we have a new man in from the best, Mr. B from Elton. एक क्लर्क बोलता है कि देखिए एक न्यू काम करने वाला आया है मिस्टर बी, ठीक है, एल्टन से आया, वो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है,
दिस इज अ डिस्कशन ऑफ शॉप में डिस्कशन होने लगता है। एक क्लर्क कंप्लेन करता है मिस्टर फ्लावर से, कोई न्यू ठीक है वर्कर आया है मिस्टर बी, वो एल्टन से आया, वो डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है क्लर्क को। ही वांट्स टू बाय थिंग्स फॉर $1,000 एंड पुट देम ऑन अ बिल टू बी पेड आफ्टर रिसीविंग द गुड्स। वो क्लर्क कहता है कि ये हज़ारों डॉलर का थिंग्स लेना चाहता है, और थिंग्स लेने के बाद ठीक है बिल को पे करना चाहता है लेने के बाद। क्लर्क सेड टू मे फ्लावर, सिंस ही इज न्यू एंड वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट हिम, डू यू वांट टू गैदर सम बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन अबाउट हिम। आप इसे जानते हैं, आप इसे उधार दे सकते हैं, पैसा हम लोग इसे जानते नहीं, सामान दे देंगे, कब पैसा देगा नहीं देगा, सो आई डोंट हैव आइडिया, ही सेड। ओके, so you understand, again you revise. Part 2 of chapter 1 will teach you tomorrow, then you reread, understand carefully. If you have any problem you can ask me. Thank you, stay home, God bless you.